Okay, let's start the class. Everyone, am I audible now? Actually, my Zoom is very problematic today. Am I audible now? Everyone, please listen very carefully. I am audible. Am I audible? Hello, Yes, sir. audible. Okay. Now, this screen is also visible. Screen is also visible. Okay, let's start the class. Let's start the class. um, so today actually we are going to today we are actually going to do multiple access. Multiple access means, first you have to understand, multiple access means here same channel we have to send data from multiple computers or multiple nodes of a network. मैं multiple nodes इसलिए मैं mention कर रहा हूँ, that may be computer, that may be router, that may be anything else, but दैट इज ए पर्टिकुलर नोड। एक चैनल है, एक चैनल एक पाथ है, चैनल मतलब मीडियम है, जिस मीडियम के थ्रू मुझे डेटा सेंड करना है मल्टीपल स्टेशन से। मल्टीपल वर्क स्टेशन आर देयर, दैट वर्क स्टेशन आर सेंडिंग द डेटा इन ए सेम चैनल। हाउ दे आर वर्किंग टू nodes, multiple types of computers. So that is particular the purpose of this particular topic, that is called multiple access. That is also a task of data link layer. So here it is first thing you have to understand, that is this is also a task of data link layer. That means data link layer can do these two tasks, two separate tasks, actually two separate things, these two things अभी तक जो भी पढ़े हैं डेटा लिंक लेयर के अंदर, डेटा लिंक कंट्रोल के अंदर, दैट कंट्रोल इज totally for totally for the controlling part. That means how error handling is doing, how the flow control is doing, how framing take part. So framing, flow control, error control, that comes under this data link control part. So this basically data link have a huge task. डेटा लिंक लेयर हैज ए ह्यूज टास्क। डेटा लिंक लेयर क्या क्या काम करेगा? फर्स्ट डेटा लिंक लेयर विल डू द डेटा लिंक कंट्रोल पार्ट, एंड देन ऑल्सो इट विल हैंडल द मल्टीपल एक्सेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। Multiple access resolution protocol also it can handle. So that is the main purpose of multiple access. Means here multiple access is used to multiplexing technique to provide communication to service a multiple user over a single channel. That is the thing, that is the main theme of this chapter, that is multiple users we have to send with a single channel. सेम चैनल है, सिंगल चैनल है, इस सिंगल चैनल के साथ चैनल को लेके बहुत सारे users will use share that particular channel. How this thing is performed, how this thing is uh, this thing is handled by some protocols, that thing we will study this in this chapter, throughout this chapter. So multiple data link layer first is divided into two parts. Basically data link layer is divided into two parts. One part is doing data link control, another part is doing multiple access resolution. So multiple access protocol handling is a separate part of data link layer, but data link layer के अंदर ही ये दोनों काम होता है. So framing, error control, flow control we have already covered. Now multiple access resolution part. So here multiple access protocol we have, there are multiple protocols. इतना सारे तुम्हें पढ़ना है. So multiple access have three main protocols, three main types of protocol. One is random access protocol, second is controlled access protocol, third is channelization. So these three, how this controlled access and channelization means मैं अभी नहीं बताऊंगा. मैं आ रहा हूँ सिर्फ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल में. Why this is called random access, that I will tell. And within this random access we have four types of protocol. One is Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. मुझे नहीं लग रहा है आज एलोहा और CSMA के छोड़ के बाकी कुछ मैं कर पाऊंगा, बट स्टिल देखते हैं. एलोहा, CSMA, CSMA CD, CSMA CA, these are the protocols we have to handle multiple access. So here also controlled access में भी इतना सारे प्रोटोकॉल है for handling the controlled access protocol. So total multiple access protocol has such many. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 protocols we have to study in this chapter. Total 10 protocols you have to study in this chapter. Aloha, CSMA, CSMA CD, CSMA CA. These four things comes under random access protocol. Reservation, polling and token passing comes under control access protocol. FDMA, TDMA, CDMA, that three things comes under channelization. So that whole process we have to do within this chapter. So that first we are moving towards the random access protocol. So random access protocol means random access protocol. The other name of this random access is contention. Contention means no station is superior to another station. No station is superior to another station, and nobody will assign a main station. किसी की कोई स्टेशन को एक मेन स्टेशन नहीं बोला जाएगा। एंड ये दो जो पर्टिकुलर 2 3 4 स्टेशन होगा, इस चारों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई ये लोग कंट्रोल, एक दूसरे का कंट्रोल कुछ नहीं कर पाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस मीन्स इंडिविजुअली दे विल वर्क, इंडिविजुअली दे विल वर्क। जो भी पूरा स्टेशन होगा वो स्टेशन एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इंडिविजुअली दे विल वर्क। जब भी उसको मर्जी होगा सेंड करने का, कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लगाना है कि हाँ कैसे ये सेंड करेगा डेटा। अदरवाइज मैं एक स्टेशन हूं और तुम एक स्टेशन हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। रैंडम एक्सेस मीन्स कोई स्टेशन के ऊपर कोई स्टेशन का कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। ऑल आर इंडिपेंडेंट स्टेशन एंड कोई भी एक पर्टिकुलर सुपीरियर नहीं है। एक स्टेशन को मैं मेन स्टेशन मान रहा हूं, बाकी सारे हैंडल कर रहा है वही स्टेशन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल स्टेशन आर इक्वली ट्रीटेड, ऑल स्टेशन विल इक्वली ट्रीटेड। That is the thing, that is the main theme of this particular protocol, that is random access protocol. Inside that random access protocol we have 4 types of, I have already discussed this thing, 4 types of protocol we have. One is Aloha, second is carrier sense multiple access, that is CSMA, stands for carrier sense multiple access, CSMA. CSMA CD, carrier sense multiple access with collision detection, and carrier sense multiple access with collision avoidance. So these 4 techniques we have to study in random access protocol. So random access protocol we have 4: Aloha, carrier sense multiple access, carrier sense multiple access with collision detection, carrier sense multiple access with collision avoidance. That's why CSMA CA, CSMA CD, CSMA CD, CSMA CA and CSMA. These are the 3-4 protocols we have to study. Now Aloha, what is Aloha? Let's come Aloha. It is pure Aloha. Pure Aloha means whenever I want to send it, I want to send the data. मैं सेंड कर दूंगा, मुझे इधर उधर कुछ नहीं देखना है। जब भी मेरा मर्जी होगा डेटा सेंड करने का, मैं डेटा सेंड करूंगा। That is the main, that is the easiest way, easiest protocol to handle, that is प्योर एलोहा। जब भी मेरा मूड होगा मैं हाँ डेटा सेंड करना है, मैं सेंड कर दूंगा। सो रैंडमली इट इज हैपनिंग। नाउ सिंपली देखो कोलिशन, डेफिनेटली अगर ये एक सेम चैनल है, सिंपली यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज सेम चैनल। अगर वही एक ही चैनल में, जैसे कि ये पहले भेजा गया था 3.2 को, 3 को मन किया 3.2 भेज दिया, वो पहुंच भी गया। बट जब भी ये 4.2 एंड 2.2 भेजा जा रहा है, फ्रेम 4.2 एंड 2.2 भेजा जा रहा है, then you see there is a collision, because एक टाइम पे दोनों फ्रेम आ चुका है in the particular channel. So this thing is called collision, मतलब पैकेट एक दूसरे से मतलब टकरा गया, that is to collision। एक ही टाइम पे 2 पैकेट एक चैनल पे आ गया, 2 फ्रेम एक चैनल पे आ गया। तो दैट इज सिंपल। ये टेक्निक, ये कोलिजन को हमें हटाना है। ये जो कोलिजन होने का चांसेस है, मैं ये इतना प्रोटोकॉल क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन हैपनिंग। रैंडम एक्सेस में कोलिजन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज एक दूसरे से कोई कंट्रोल नहीं है। तो अब ये इस पर्टिकुलर पर्पस में अगर इस तरह का नेटवर्क हो सकता है, मेरे पास इस तरह का कोई डेडिकेटेड चैनल नहीं है, एक लैन बनाया, एक लैन पे सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए।
तो यहाँ पे कोई एक दूसरा स्टेशन से कोई मतलब नहीं है, ऑल आर इक्वल स्टेशन। तो वहां पे एक जो चैनल मैं भेज रहा हूँ उस चैनल में सारे डेटा कभी भी आ सकता है। एक कंप्यूटर से आ रहा है, दूसरा कंप्यूटर जैसे ही आएगा कोलिजन हो गया, सेम टाइम में अगर दो फ्रेम आ गया एक चैनल में, कोलिजन ऑकर्स। सो दैट कोलिजन वी मस्ट रिड्यूस। दैट थिंग इज योर इन माइंड कि हाँ इस कोलिजन को मैं कैसे हटा सकता हूं। दैट इज द सिंपल थिंग यू हैव टू डू। सो दैट इज द एकदम प्योर एलोआ। प्योर एलोआ मीन्स whenever I want to send the data, I want to send, I send this data। मुझे देखना ही नहीं है कि यहाँ चैनल बिजी है, चैनल आइडल है, या चैनल कुछ सेंस करने का जरूरत ही नहीं है। दैट इज प्योर एलोआ। दैट इज कॉल्ड प्योर एलोआ। कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा उसको, फ्रेम लॉस्ट हो सकता है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेम लॉस इज हैपनिंग है। फ्रेम कभी भी लॉस हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम लॉस हो जाता है। सो मेन एल्गोरिथम फॉर मेन फ्लो चार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर प्योर एलोआ इज दिस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए स्टेशन हैज टू फ्रेम हैज टू सेंड करना है उसको। फर्स्ट इट विल क्रिएट ए k इक्वल्स टू 0। वाई k इक्वल्स टू 0, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। k विल इंक्रीमेंट, h and k will actually count the number of trying, मतलब मैं कितने बार सेंड करने का कोशिश किया बट नहीं पहुंचा, कोलिजन के चलते डेथ ये हो गया। सो दैट एक्चुअली इट काउंट्स, k एक्चुअली इट काउंट्स। सो k सिंपली k को 0 किया बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज ट्राइंग टू सेंड द डेटा को ये पहली बार सेंड करने का कोशिश कर रहा है। सो दैट्स व्हाई k इनिशियली इज 0। जैसे ही इनिशियलाइज के 0 किया, उसके बाद ये फ्रेम को सेंड कर दिया, फ्रेम को सेंड कर दिया। कुछ देर ये वेट करेगा। कितना देर वेट करेगा? 2 into TP टाइम। दैट मींस जितना ट्रांजिशन होना चाहिए, दैट इज 2 into प्रोपोगेशन टाइम। दिस इज TP, प्रोपोगेशन टाइम एंड TP। प्रोपोगेशन टाइम मींस एक एंड से दूसरे एंड में जाने का जितना टाइम है एक पर्टिकुलर फ्रेम को, दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन टाइम। दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन टाइम। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में जाने का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम। बट ये जो एक एंड और दूसरा एंड, ये बार बार मैं कोशिश करो, ये सिंपली दिस इज, ये पहला बिट छोड़ा, वहां पे पहला बिट पहुंच गया, दैट इज द प्रोपोगेशन टाइम। बट transition time, here you can see the difference. Average transition time. What is the transition time and frame? Transition time means जब मैं फ्रेम सेंड कर रहा हूं, पहला बिट यहां से शुरू किया, वहां पे लास्ट बिट पहुंचा, ये जो टोटल टाइम है, दैट टाइम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टाइम। मतलब एक फ्रेम पूरा कंप्लीट भेजने तक जो टाइम है वो है ट्रांजिशन टाइम। प्रोपोगेशन टाइम क्या है? फर्स्ट फ्रेम टू फर्स्ट फ्रेम। जैसे ही फर्स्ट फ्रेम यहां से छोड़ा, वहां पे फर्स्ट फ्रेम पहुंच गया, दैट इज प्रोपोगेशन टाइम। So propagation time is only first bit to first bit. Transmission time is first bit to last bit. पहला बिट मैंने शुरू किया था, वहां पे लास्ट बिट पहुंच गया है, दैट इज कंप्लीटली सेंड, दैट इज द ट्रांजिशन टाइम। दैट इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोपोगेशन टाइम एंड ट्रांजिशन टाइम। सो इट विल वेट फॉर two propagation time that is taken by that particular algorithm is taken universally. So whenever pure aloha tells, the pure aloha always wait for t into TP sign, that TP time. That means it will wait for some time, it will wait for 2 into maximum propagation, average maximum propagation time it will wait। उसके बाद ये कोशिश करेगा कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, बिकॉज अब तुमको समझना है 2 into क्यों था, बिकॉज ये सेंड होगा और वहां से फिर एक्नॉलेजमेंट मेरे पास आएगा 2 times। दैट्स व्हाई इट विल वेट फॉर 2 into TP साइन, TP टाइम। सो ये वेट किया कितना देर, रिसीवर गया, वो रिसीव किया, तुरंत उसने रिप्लाई करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड है, सक्सेस, सिंपली एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड है, सक्सेस। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड नहीं है, then again k equals to k plus 1 because this is the next time I am sending। first time k 0 था, अब रिपीट कर रहा हूं उस चीज को, मैं फिर से सेंड करने का कोशिश करूंगा उस फ्रेम को। so that's why k will be increased। k जैसे इंक्रीमेंट हुआ, फिर ये चेक करेगा k is greater than k max।
k is greater than k max, that means k max मैथ, ये जो प्योर एलोआ टेल्स के तुम 15 टाइम से ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते। अगर 15 बार में भी नहीं पहुंचा, दैट मीन्स योर डेटा विल नॉट बी सेंड, ये सेंड होगा ही नहीं, वो फ्रेम को वो डिस्कार्ड करके आगे बढ़ेगा, उस फ्रेम को वो कभी नहीं पहुंचाएगा, एरर के साथ वो पहुंचेगा, वो कभी पहुंचेगा ही नहीं, वो कम्युनिकेशन डेटा लॉस हो जाएगा। so that is universally taken again in pure allo। so k greater than k max, ये चेक करेगा k greater than k max, अगर k greater than 15 से ज्यादा हो गया, k max equals to normally 15 15 k max is normally 15 times, that means 15 times you can retry, 15 times you can retry, that's the simple thing। तो यहाँ पे 15 टाइम्स वो चेक करिए, 15 से ज्यादा बार हो गया क्या, अगर ज्यादा बार हो गया तो एब्रॉर्ब कर देगा, दैट मींस वो होगा ही नहीं, कभी कभी नहीं होगा उस चीज को, वो फ्रेम को वो डिस्कार्ड कर देगा। और अगर 15 से ज्यादा बार नहीं हुआ, देन अगेन एक रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा 0 to k to the power k minus 1। सो व्हाई इट इज, मैं आऊंगा एक यहाँ पे एक मैथमेटिक्स दिया है, एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल में ये पता चल जाएगा व्हाई दिस इज 0 to k to the power k minus 1। ये एक रैंडम नंबर, इतना समझ के जाओ अभी, रैंडम नंबर इट विल जनरेट, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा एंड देन उस रैंडम नंबर के साथ फिर ट्रांजिशन टाइम या प्रोपोगेशन टाइम से मल्टीप्लाई करेगा, दैट मींस एक रैंडम टाइम तक वो वेट करेगा, रैंडम टाइम तक ये वेट करेगा, बिकॉज इस रैंडम नंबर के साथ, इस रैंडम नंबर के साथ तुम कोई भी टाइम ये करो, कोई भी टाइम मल्टीप्लाई करो, दैट बिकम्स रैंडम, दैट बिकम रैंडम। तो एक रैंडम टाइम उसको, एक रैंडम टाइम वो वेट करेगा, उसके बाद फिर से ये डेटा सेंड कर देगा विदाउट परमिशन, विदाउट टेकिंग परमिशन एनीवन, ये डेटा सेंड कर देगा, अगेन इट विल सेंड, अगेन इट विल वेट, एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, यस तो सक्सेस नहीं हुआ तो फिर के को बढ़ाएगा, फिर रैंडम टाइम वेट करेगा, फिर डेटा सेंड करेगा। So it will repeat 15 times, maximum 15 times this particular process will repeat। So in this way pure ALOA works। So pure ALOA means simply based on random time it will circulate। ये डेटा सेंड हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर से वेट करके फिर से डेटा सेंड, फिर डेटा सेंड, फिर डेटा सेंड, फिर डेटा सेंड, 15 बार में एक बार पहुंच ही जाएगा। So that is the thing it will do, it will work, that is pure ALOA works in this particular format, pure ALOA। now एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, let's take a station on a wireless ALOA network are maximum 16 kilometer apart, 600 kilometer apart, 600 किलोमीटर apart में दोनों है। now एक सिग्नल प्रोपोगेट करेगा, see 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब सेकेंड में 3 into 10 to the power 8 मीटर इट कैन प्रोपोगेट, एक सेकेंड में इतना दूर तक एक सिग्नल को प्रोपोगेट कर सकता है, एक सिग्नल को एक सेकेंड में इतना मीटर वो प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब डेटा को पहुंचा सकता है, उतना दूर ही वो पहुंचा सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? मैं क्या क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूं, एक सेकेंड में उतना ही दूर वो पहुंचा सकता है। नाउ 3 into 10 to the power 8 मीटर, 3 into 10 to the power 8 मीटर वो पहुंचा सकता है एक सेकेंड में, एक सेकेंड में इतना दूर पहुंचा सकता है, 3 into 10 to the power ह्यूज मीटर, इट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर वो पहुंचा सकता है। और कितना दूर में है ये, 600 किलोमीटर दूर में है। नाउ कितना दूर में ये 600 किलोमीटर पहुंच जाएगा ये डेटा, इसका मतलब कितना देर में ये पहुंच जाएगा, कितना देर में ये पहुंचेगा, 6 into 10 to the power 5 that is the kilometer we have, 6 into 10 to the power that is the meter we have, that is the distance of two stations, दो स्टेशन का डिस्टेंस इतना है और एक सेकेंड में इतना दूर पहुंच जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे, so that is 2 मिलीसेकेंड, so you can check it, 2 मिलीसेकेंड उसको डेटा पहुंचाने में लगेगा, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन पहुंचाने में, जो मेरा प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टोटल उस स्टेशन के, दो स्टेशन के बीच में एक डेटा पहुंचाने में उसको 2 मिलीसेकेंड लगेगा, सिंपल 2 मिलीसेकेंड। नाउ
we can find the value of TB. यहां से तुम देखो TB different values, TB different values. How it will work? See here TB value we can calculate. अब यहाँ पे देखो रैंडम नंबर, अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। अभी ये जो प्योर एलोहा बोल रहा है, प्योर एलोहा बोल रहा है जो मेरा डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हमको चूज करना है। अगर के 1 है, यहाँ पे के फर्स्ट टाइम के 1 है, दैट मीन्स सेकेंड टाइम आई एम ट्राइंग, के पहले 0 था, सेकेंड टाइम आई एम ट्राइंग, जैसे ही के 0 हो गया है, के 1 हो गया, दैट मीन्स एक बार सेंड कर चुके हैं डेटा। के 1 का मतलब क्या है? एक बार डेटा सेंड कर चुके हैं, ये दूसरी बार मैं ट्राई करने जा रहा हूं। देखो हर बार क्या करेगा ये रैंडम नंबर, कैसे ये इंक्रीज कर रहा है टाइम को, देखो बहुत अच्छा से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग। यहां पे सिंपली देखो k इज 1, अब k जब 1 है, यहां देखो k जब 1 है, 2 टू द पावर k, 2 टू द पावर k, व्हाट इज द वैल्यू 2 टू द पावर k? 2 minus 1, 2 to the power 1 minus 1, that is 1. So that means 0 और 1 के बीच में एक रैंडम नंबर वो जनरेट करेगा, 0 और 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। जब फर्स्ट टाइम ये आएगा, फर्स्ट टाइम ये आएगा 0 to 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। सो सी 0 और 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। सो दैट मीन्स ये रैंडम नंबर विद 0 एंड 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है। नाउ दिस मीन्स TB विल बी आइदर 0 मिलीसेकेंड और 2 मिलीसेकेंड, बिकॉज TB अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे TB, ये R अगर 0 है सो दैट बिकम्स 0 और 1 है दैट बिकम्स 2। नाउ सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड, 2 मिलीसेकेंड में ये डेटा पहुंचा रहा है, सो 2 मिलीसेकेंड में डेटा पहुंच रहा है। अगर 1 होगा तो 1 into 2 दैट इज TB, ट्रांजिशन टाइम वही है। तो आप सिंपली सोचो 0 और 2 के बीच में कोई एक टाइम, 0 और 2 मिलीसेकेंड के बीच में कोई एक सेकेंड टाइम वो वेट करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये डेटा एक बार में नहीं पहुंचा, दूसरी बार में ट्राई कर रहे हैं, तब का बात ये मैं कर रहा हूं, तब का बार ये 0 और 2 मिलीसेकेंड के बीच में एक रैंडम टाइम वो वेट करेगा। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, जब तीसरी बार उस बार भी नहीं पहुंचा, लेट्स टेक उस बार भी नहीं पहुंचा, देन k इक्वल्स टू 2, तो रेंज देखो बढ़ गया, बिकॉज प्लीज सी रेंज देखो बढ़ गया, बिकॉज k इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2 minus 1, व्हाट इज दैट 2 टू द पावर 2 minus 1? 4, 3, दैट मीन्स 0 to 3 के बीच में, 0 to 3 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। दैट मीन्स 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 मिलीसेकेंड, 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 6 मिलीसेकेंड। दैट मीन्स 0 भी हो सकता है, 2 मिलीसेकेंड भी वेट कर सकता है, 4 मिलीसेकेंड भी वेट कर सकता है, 6 मिलीसेकेंड भी वेट कर सकता है। दैट मीन्स जब दूसरी बार ये घूम के जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जब दूसरी बार ये घूम के जा रहा है उस टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ये पहली बार में टाइम एकदम शॉर्ट था, कुछ कम देर वेट करेगा, सेकेंड बार जब जाएगा कुछ ज्यादा देर वेट किया, तीसरी बार जाएगा और थोड़ा सा ज्यादा देर वेट करेगा कि हाँ नहीं भेजा जा रहा है, बार बार नहीं भेजा जा रहा है, तो इसीलिए पहली बार जब कोशिश कर रहा है थोड़ा कम टाइम मैंने वेट किया, सेकेंड बार थोड़ा ज्यादा टाइम वेट किया, तीसरी बार थोड़ा और ज्यादा टाइम वेट किया। दैट्स व्हाई दिस रैंडम नंबर, दैट्स व्हाई ये इंक्रीज, जो धीरे धीरे इंक्रीज टाइम को इंक्रीज किया जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस रैंडम नंबर शुड बी 0 to 2 to the power k minus 1। इसके ऊपर डिपेंड करके ये रैंडम नंबर जनरेट होगा। कितने बार, कौन सा बार में तुम सेंड कर रहे हो, 5th बार है तो थोड़ा देर ज्यादा वेट कर लो भाई, डेटा पहुंच नहीं जा रहा है। सिंपल दिस कॉन्सेप्ट। अगर 6ठा बार तुम कोशिश कर रहे हो और थोड़ा देर वेट कर लो भाई, क्योंकि डेटा पहुंच नहीं रहा है, डेटा बिजी होगा चैनल। तो ये धीरे धीरे वेटिंग टाइम को इंक्रीज किया जा रहा है। इज द थिंग क्लियर टू यू? दिस कॉन्सेप्ट?